अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. Dear students, read with me. अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह. अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I hope all of you are fine. Today we will start English lecture class 6 and our topic is reading. Today this is the third lecture and last reading for this lesson. I hope all of you have your notebook, your pen and pencil with you. If you don't have, then you must take it quickly. Dear students, first of all we will discuss our objectives today. At the end of this lesson, you will be able to read and understand the lesson. You can talk about family relationship and those that are important to them. You will be able to write about family relationship. Now I will give you the review of the lesson. Dear students, in this lesson we have talked about family relationship. In this lesson there is a child whose father is a sergeant, that means police officer, and he is very strict man. He don't like his father because he don't like his father, and the father also he don't like his son because they have different personalities. They don't like each other. Their mindsets are different. His father, he don't like reading, writing, painting, etc. But his son, he like reading, writing, painting, etc. His father like just boxing, training, swimming, these type of activities. That's why they have different personalities. Now we will further discuss and read about the lesson from paragraph number 8. First of all, I will tell you about शरीफ हिदायतनामा. Dear students, इस लेसन में पैराग्राफ नंबर 8 के अंदर कुछ गेम्स का जिक्र किया है जो कि शरीर तकाज़ों के हवाले से वो ठीक नहीं है, क्योंकि ये जो गेम है ये वक़्त का ज़िया भी होता है. जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने ये जिक्र किया है, गेम्स आर वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मूव्स अवे अस फ्रॉम इस्लाम, जो कि हमें इस्लाम से भी दूर करती है. वक़्त का भी ज़िया है और हमें इस्लाम से भी दूर करती है. इसलिए हमें इस तरह की जो गेम्स हैं उनसे अवॉइड करना चाहिए, जैसा कि पैराग्राफ नंबर 8 में जिक्र हुआ है इन गेम्स का. ये शरीफ हिदायतनामा पॉइंट नंबर 1 था. चलिए जी, पैराग्राफ नंबर 8 I will start reading. However, it was not just work which kept him away from me. वो कह रहा है however, जबकि it was not just work, ये काम ही नहीं है, which kept him away from me, जिसने इनको मुझसे, इनके जो उसका फादर है उसने मुझसे दूर रखा. तो कहते हैं ये सिर्फ काम ही नहीं था जिसने इनको मुझसे दूर रखा, यानी कि मेरे फादर को मुझसे दूर रखा. He simply
wasn't the kind of man who liked to spend much of time at home. वो कहते हैं he simply, सादा अल्फाज में, वो इस तरह के इंसान ही नहीं है, इस तरह का कोई शख्स ही नहीं जो कि घर में अपना टाइम गुजारना पसंद करते थे. When he wasn't at work, जब वो काम पर नहीं थे, he would be out indulging in one of many hobbies, और वो कई तरह के जो मशागिल थे या मशगले थे उनके अंदर वो मशगूल थे. इंडल्ज होता है यानी कि किसी काम में जुट जाना या उसके बारे में सोचते रहना. These tend to reflect the fact that he was what would now be known as a physical fitness freak. यानी कि वो कह रहा है कि these tend to reflect the fact, यानी कि ये हकीकत को आश्कार करता है या रिफ्लेक्ट करता है that he was what would now be known as a physical fitness freak. यानी कि वो ज़ाहरी बनावट के हवाले से वो समझे जाते थे, यानी कि उसके बारे में वो सोचते थे और वो उसको करते भी थे. This was well before the modern obsession with gyms and working out. कहता this was well before, ये बहुत अच्छा था. मॉडर्न जो obsession है, जो नई सोच है, उससे पहले. With gyms and working out, जिम और जो दूसरा काम था वर्किंग आउट, यानी कि जो काम सख्त काम थे. But he did weight training, लेकिन वो उन्होंने वेट ट्रेनिंग, वेट यानी कि वेट उठाने की, वजन उठाने वाली वो ट्रेनिंग की, बॉक्सिंग की, स्वैम, तैराकी, प्लेड फुटबॉल एंड गोल्फ, फुटबॉल और गोल्फ खेला, एंड वेंट हिल वॉकिंग, और हिल वॉकिंग यानी कि जो पहाड़ी इलाके में ऊपर की तरफ चढ़ना, यानी कि माउंटेनियस रीजन की तरफ, तो उसको हिल वॉकिंग कहते हैं. ये भी मशक्कत वाला काम है, तो यानी कि वो ये भी करते थे. ऑल ऑन अ रेगुलर बेसिस, और बाकायदगी के साथ में, ऑल ऑन अ रेगुलर बेसिस यानी कि वो बाकायदगी के साथ ये करते थे. When he was not indulging in some physical exercises himself, जब वो इस तरह की जो वर्जिशें थी, वर्जिशें जो थी अपने आप के लिए, उसमें वो मशगूल नहीं थे. He was encouraging others to do so, वो दूसरों को इसकी तरगीब दिलाते थे, उभारते थे. इंकरेज होता है उभारना दूसरों. बस ताहम he trained the local junior football team, उन्होंने जूनियर छोटी फुटबॉल टीम को ट्रेन किया. और ran a local boys club, और एक लोकल जो क्लब है लड़कों का वो भी चलाया. Where he coached some of them in boxing and other in swimming, जिसमें उन्होंने बॉक्सिंग की और तैराकी की, उन्होंने कोचिंग की दूसरों के लिए. some of them, दूसरों को. Okay, now you can see here what are the meaning. Indulging means allow someone to enjoy something desires, यानी कि जो इंसान चीज़ पसंद करता है उसके अंदर उसकी ख्वाहिश रखना और लुत्फ़अंदोज़ होना. हॉबीज़ मीन है एन एक्टिविटी डन रेगुलरली इन वंस लेजर टाइम फॉर प्ले, यानी कि फ्री वक्त में अपनी खुशी के लिए कुछ करना, कोई एक्टिविटी करना. ऑब्सेशन है समथिंग और समवन दैट यू थिंक ऑल द टाइम, यानी कि जो कुछ हम अपने लिए सोचते हैं या कोई एक सोचता है कुछ करने का, तो उसको ऑब्सेशन कहते हैं. फ्रीक्वेंट यूनिक यानी कि बहुत अच्छा. इन वॉकिंग इन हिली रीजन. पैराग्राफ नंबर 9. व्हाट यू मे आस्क was his only son, indeed only child. What क्या you may ask, तुम पूछ सकते हो. was only his son, सिर्फ उसका ही बेटा था. indeed only child, जो हकीकत में एक बच्चा है. doing when all this activity was taking place, यानी कि वो कहाँ था जब ये सारी एक्टिविटीज
हो रही थी, ये तुम पूछ सकते हो। I was indulging in the hobbies which I enjoyed. मैं वो सोचता था, यानी कि मैं वो उसमें मेरी वो ख्वाहिश थी, हर टाइम मैं वो सोचता था उन मशागिल का जिसको मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता था, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी। I enjoyed, मुझे पसंद थी। These were some sedentary and thus diametrically opposed to those of my active father. These were sedentary, कहता है इसमें कोई डाउट नहीं है। These were sedentary, sedentary no doubt, यानी कि इसमें कोई अबहाम नहीं है। And thus diametrically opposed, यानी कि जिसको सामने से उसकी मुखालफत करना, डायमेट्रिकली अपोज यानी कि उसकी मुखालफत करना। टू दोज ऑफ माई एक्टिव फादर, जो कि मेरे फादर को वो पसंद थी। वो कहता कोई डाउट नहीं इसमें कि वो मुझे नापसंद थी और मैं उनके खिलाफ था अपने फादर के, यानी कि वो दूसरी ये पसंद करते थे। अब वो आगे जिक्र कर रहा है। आई लव ड्राइंग, पेंटिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। आई लव ड्राइंग, वो कहता है मैं पसंद करता हूँ ड्राइंग, पेंटिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। एडमायरेबल अर्ली परसुएट फॉर वन who was to become an artist and art critic, यानी कि वो कह रहा है कि ये काबिल तारीफ है उसके लिए जो मरहूब है और जो एक बड़ा आर्टिस्ट और आर्ट का जो माहिर बनना चाहता है, आर्ट क्रिटिक माहिर बनना चाहता है, उसके लिए ये बहुत अच्छा है और काबिल तारीफ है। एज आई हैव, जैसा कि मैं हूँ, बट परसुएट्स which did not endear me to my father, यानी कि ये राबित बट परसुएट which did not endear me, कहता है ये बहुत ज़्यादा मुश्किल था कि किसी को न, यानी कि वो उसको लाइक करे। ये दूसरों के लिए मुश्किल है, तो मेरे फादर के लिए मुश्किल था कि वो भी उसको, जो मुझे पसंद है वो भी उसको पसंद करे। ये बहुत ज़्यादा उनके लिए मुश्किल था। which did not endear me, यानी कि endear me easily able to make people like you, यानी कि जैसा तुम पसंद करते हो वैसे दूसरे भी पसंद करते हो। कहता इस तरह ये मेरे फादर के लिए भी मुश्किल था कि वो भी ये पसंद करे, और ये मेरे लिए भी मुश्किल था कि मैं उनको इस तरफ राग़िब करूँ, यानी कि अपनी जो मोहब्बत के लिए जो था, यानी कि उसको इन चीज़ों से मोहब्बत थी, ड्राइंग से, पेंटिंग से, रीडिंग से, राइटिंग से। तो वो कहता कि मैं उनको इस तरफ अपनी बात की तरफ राग़िब करूँ कि मुझे आर्ट में या आर्टिस्ट बनने में ज़्यादा, यानी कि मुझे पसंद है ये, तो इस तरफ उनको राग़िब करना मेरे लिए ये मुश्किल था। वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स यू कैन सी इन रीडिंग इन रियलिटी, यानी कि हकीकत में, सेकेंडरी में नो डाउट, यानी कि कोई डाउट ना होना, यानी कि डायमेट्रिकली अपोज में डायरेक्टली इन अपोजिशन, यानी कि खुलेआम किसी का मुखालफत करना। परसुएटिंग टू एक्ट ऑफ परसुइंग, यानी कि किसी को राग़िब करना। इंडियर में इजीली एबल टू मेक पीपल लाइक यू, यानी कि लोगों को इस काबिल बनाना कि वो तुमको, या तुम्हारी जो सोच है या तुम्हारी पसंद है उसको वो भी पसंद करो। पैराग्राफ नंबर 10। आई वॉज इंडीड अ डिसअपॉइंटमेंट टू हिम, कहता कि मैं उनसे डिसअपॉइंट था हकीकत में। He despised the kind of activities, यानी कि वो कहता है he despised the kind of activities which I enjoyed, and he had to face the fact that a strong fit man like himself had somehow fathered a weakly child who was often ill। वो कह रहा है कि despised, यानी कि वो strongly डिसलाइक करते थे द काइंड ऑफ एक्टिविटीज़, इस तरह की जो एक्टिविटीज़ थी, यानी कि जो रीडिंग, राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग वाली जो
एक्टिविटीज थी वो इनके मुखालिफ थे या स्ट्रांगली वो डिसलाइक करते थे, ना पसंद करते थे, विच आई एंजॉय, जिनको मैं पसंद करता था, एंड हैड टू फेस द फैक्ट, और इस हकीकत का सामना था, दैट अ स्ट्रॉन्ग फिट मैन लाइक हिमसेल्फ, कि उन जैसा एक स्ट्रॉन्ग यानी कि कवि इंसान, हैड समहाउ फादर अ वीकली चाइल्ड, यानी कि वो एक कमजोर बच्चे का बाप था, ही वॉज ऑफन इल, जो कि अक्सर औकात बीमार रहता था। अब वो ये कह रहा है कि मेरे फादर इस चीज़ को नापसंद करते थे कि जिस तरह की मेरी एक्टिविटीज़ थी, वो चाहते थे कि मैं भी उनकी तरह एक स्ट्रॉन्ग मैन बनूँ। लोग ये ना कहें कि ये इतनी, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग फादर का बेटा वो इस तरह, वो अक्सर बीमार रहने वाला एक बच्चा है, वीक बच्चा है, वो इस तरह वो नापसंद करते। इफ आई हैड नॉट सो स्ट्रॉन्गली रिजेंबल्ड हिम, कहता अगर मैं इनके साथ में इतना भरपूर यानी कि मुशाबहत ना रखता इन फेशियल फीचर्स, यानी कि ज़ाहरी जो जिस्मानी जो फीचर्स हैं या जिस्म या चेहरे के जो खदो खाल हैं, जिस्म के खदो खाल हैं, उनकी मुशाबहत ना रखता, he might well have doubted that he was my biological father, कहता तो वो इस चीज़ का अबहाम रखते कि वो मेरे बायोलॉजिकल फादर थे, तो वो उनको ये अबहाम होता कि मैं उनका बेटा हूँ, और लोग ये समझते कि यानी कि मैं इनका बेटा नहीं हूँ, जो रियल मेरे फादर हैं वो ये नहीं है। Was now you can see here words and their meaning. Disappointment mean unhappiness, and disparagement to feel a strong dislike. Resemble mean have a similar, यानी कि एक जैसा होना, मुशाबहत रखना। Facial features mean appearance, यानी कि जो ज़ाहरीपन है, चाहे वो जिस्म का है चाहे वो चेहरे का है, यानी कि खदोखाल जिसको हम कह लें, तो उनको अपीयरेंस कहते हैं। सो बॉयज, आज हमने पैराग्राफ नंबर 8 to 10 पढ़ा, हमने इसकी रीडिंग की, ट्रांसलेशन की और वर्ड मीनिंग्स को डिस्कस किया। तो बेटा इसमें हमने मुख्तलिफ यानी कि पॉइंट्स पढ़े कि पहले तो इसमें कुछ गेम्स का जिक्र है जो कि हमारे शरीर तकाज़ों के हवाले से वो सही नहीं है, क्योंकि जो गेम्स हैं वो वक्त का ज़िया है, वक्त का ज़िया, और हमें दीन से दूर लेके जाती हैं, तो इसलिए हमें ये गेम्स को अडॉप्ट नहीं करना चाहिए, हमें इस तरह की एक्टिविटीज़ में मुलव्वस नहीं होना चाहिए। ये शरई हदायतनामा आपको बताया गया, और इसमें उसका फादर जो था वो कहता है कि वो हर टाइम ही उनको बॉक्सिंग का, स्विमिंग का, फुटबॉल का, गोल्फ का और हिल वॉकिंग का वो ट्रेनिंग भी देते थे, और उनको जुनून भी होता था, वो चाहते थे कि उनका जो बेटा है वो भी उनकी तरह बने। पैराग्राफ नंबर 9 के अंदर वो कहता है कि मुझे जो था वो ड्राइंग, पेंटिंग, रीडिंग, राइटिंग जो थी वो इन चीज़ों से प्यार था, और ये मेरे लिए मुश्किल था कि मैं अपने बाप को अपनी यानी कि जो मेरी हॉबीज़ थी या जो मेरी लाइकिंग की जो एक्टिविटीज़ थी मैं उनकी तरफ राग़िब करूँ, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। कहता है अगर कि मैं उनकी तरह मेरे जो फिज़िकल फीचर्स हैं यानी कि मेरी जो अपीयरेंस है, ज़ाहरीपन है, अगर मेरे फादर की तरह ना होता तो फिर वो ये समझते कि ना उनका जो बायोलॉजिकल यानी कि जो उनका रियल बेटा हूँ वो नहीं है, या वो मेरे रियल फादर नहीं है, मैं किसी और का बेटा हूँ। तो आज हमने ये पढ़ा। ये स्टूडेंट्स, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? टुडेज होमवर्क, काइंडली रीड द कंप्लीट लेसन एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स। प्यारे बच्चों, आपने इस कंप्लीट लेसन को आपने पढ़ना है और इसको अपने अल्फाज के आसान वर्ड्स के अंदर आपने इसको बयान करने की कोशिश करनी है, और आपने इसको अपनी नोटबुक के अंदर लिखने की भी एक छोटी सी कोशिश करनी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरा।